Good morning. How are you? Hope you all are well. In this video, we shall discuss chapter 8 from NCERT, that is quadrilateral. What is quadrilateral? Quadrilateral is the figure obtained by joining the 4 points in order. कैसे? एक पॉइंट ये है, वन पॉइंट इज दिस, वन पॉइंट इज दिस एंड वन पॉइंट इज दिस. इन सबको ज्वाइन करें ऑर्डर में लाइक दिस. ए, इस पॉइंट को बी कहें, दैट इज सी, एंड दिस डी. In other words, we can define the quadrilateral a closed figure. Which type of figure? Closed figure formed by 4 line segment. In this quadrilateral, one line segment is AB, other is BC, third is CD, and fourth is AD. The figure obtained by joining the 4 points in order, we will obtain a quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल को एक डिफरेंट तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? तो क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट, दिस टाइप ऑफ. क्लियर? एंड द थिंग्स रिलेटेड टू द क्वाड्रिलेटरल, वन इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 degree. This property is known as angle sum property. Clear? Angle sum property. Sum of all the angles of a quadrilateral is 360. Interior angle. This angle, this angle, this angle, and this angle. Sum of all these angles is 360 degree. So means given is quadrilateral ABCD. Clear? We have to prove कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री. And sum of all the angles is 360 degree. To prove this, we have to make some construction, and construction is, what is construction? Join A to C. यानी A को क्या करें हम? C से ज्वाइन कर दे लाइक दिस. कर दे बेटा. And after joining A to C, this angle is 1 and this is 2 and this angle 3 and this is 4. Is it clear? In triangle ABC, यानी now we are doing proof of this in triangle ABC. ठीक है? Angle sum property for this triangle by angle sum property. What is the angle sum property for a triangle? And sum of all the angles of a triangle is 180 degree. In triangle ABC, how many angles? 3 angles. Which angles? Angle 1 plus angle B or plus angle 3 equal to 180. और इसको क्या देंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट. देखिए, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 degree. Similarly, in triangle ACD, by angle sum property. क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी बेटा? इस एंगल के लिए यानी ट्रायंगल के लिए एंगल 2 प्लस एंगल D और प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180. इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट 2. इज इट क्लियर? मीन्स टिल नाउ we obtained 2 statement. Statement 1 is saying that sum of all the angles of this triangle ABC is 180 degree, and second statement, sum of all the angles of this triangle ACD is 180 degree. Clear? And now adding statement 1 and statement 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करें? ऐड कर दें. लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, राइट साइड को राइट साइड में. इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2.
इज इट क्लियर? एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 एंड प्लस एंगल 2 प्लस एंगल D और प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 और प्लस 180 डिग्री. इज इट क्लियर? नाउ कलेक्ट एंगल 1 एंड एंगल 2 इन अ सेम ब्रैकेट प्लस एंगल B. एंगल 3 and angle 4 collect in a same bracket and plus angle D become 360 degree. Is it clear? Now angle 1 and angle 2. See angle 1. Angle 1 is this and angle 2 is this. Sum of these two angle become whole angle and this angle is A. Now this is angle A plus angle B plus angle 3 and angle 4. Sum of these two angles 3A और 4A. Sum of these two is whole यानी angle C और प्लस एंगल D इक्वल टू 360. और यही तो हमें प्रूफ करना था क्या? समझ आया कि नहीं आया? ओके, डू इट. नाउ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्लियर? दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ABCD. इज द क्वाड्रिलेटरल. इफ only one pair of opposite sides are parallel to each other become trapezium. देख रहे हैं इस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का सिंगल पेयर यानी AB एंड CD बोथ आर पैरेलल यानी AB पैरेलल टू CD. तो इस कंडीशन में ये जो क्वाड्रिलेटरल है बिकम ट्रेपेजियम. ठीक, क्वेश्चन आता है अगर ओनली वन पेयर ऑफ opposite side is parallel to each other become trapezium. If both the pair of opposite sides are parallel to each other, which type of quadrilateral will be formed? Okay, देखिए अगर इसके both pair of opposite sides are parallel to each other तो it will be a parallelogram. क्या बनेगा ये? Parallelogram. क्लियर? इसमें क्या है? AB parallel to CD and AD पैरेलल टू BC. ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये बोथ द साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. सो इट विल बी ए पैरेललोग्राम. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम? इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर विल बी ए पैरेललोग्राम. इज इट क्लियर? नाउ अगर किसी पैरेललोग्राम का इफ इन ए पैरेललोग्राम adjacent sides are equal means this side equal to this and this side equal to this या कह दें all four sides are equal. When we will discuss the properties of parallelogram we will discuss same thing. So अगर all four sides are equal in a parallelogram will be a rhombus. That is rhombus. Clear? And a rhombus with each interior angle of 90 degree will be a square. Is it clear? And same thing in a parallelogram if each interior angle is of 90 degree it will be a rectangle. Okay, properties of parallelogram and exercise 8.1 from 9th class NCERT books. So the property of parallelogram are first property that is 8.1. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Means इस छोटे से स्पेस में यहाँ मैं करके दिखाता हूँ. देखिए ये एक छोटा सा पैरेललोग्राम है. ठीक, इसकी नेमिंग अगर करें तो ABC एंड ये D. इसके इस डायगोनल को ज्वाइन कर दें लाइक दिस तो वन ट्रायंगल इज दिस वन इज दिस यानी ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC both the triangles are congruent triangles. Means a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Is it clear? That is first property. Second property, in a parallelogram opposite sides are equal. देखिए ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स AB और ये CD both are equal and AD
and BC are also equal because opposite sides are equal. Third property, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram. यानी प्रॉपर्टी थर्ड इज जस्ट कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 2. यानी किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर आपस में इक्वल हैं, जैसे ये है कि AB और CD इक्वल हो जाएं एंड BC एंड AD इक्वल हो जाएं, इन दिस सिचुएशन वी कैन से दैट द क्वाड्रिलेटरल विल बी द पैरेललोग्राम. प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. मीन्स these two angles A and C are the opposite in this quadrilateral. अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो क्वाड्रिलेटरल ABCD will be the parallelogram. Clear? And fifth property is in a quadrilateral each pair of opposite angles are equal then it is a parallelogram. यानी ये क्या है, इस प्रॉपर्टी नंबर 4 का कन्वर्स जो मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी द पैरेललोग्राम. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. यानी अगर इसका ये डायगोनल हम ज्वाइन करते हैं AC और डायगोनल BD, दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन किया तो बोथ द डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O. तो एट पॉइंट O both the diagonals are bisecting each other. And converse of it in property number 7, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it will be a parallelogram. यानी हमें नहीं पता कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है, but the given thing is कि both the diagonals are bisecting each other. In this situation we can say that कि quadrilateral ABCD is a parallelogram. Clear? And the last property, the very important property, and this property will be used in coming exercise questions. So if a pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, यानी अब ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, देखिए ABCD में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये वो कह रहा है कि एक पेयर यानी AB पैरेलल है किसके, CD के. AB और CD दोनों पैरेलल भी हैं और AB और CD दोनों इक्वल भी हैं. अगर ऐसा है अपोजिट साइड्स का कोई भी एक पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, then we can say that the given quadrilateral is parallelogram. Clear? Very important property this. If a pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel then it is a parallelogram. Clear? Question, parallelogram, अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं तो इट विल बी ए रोम्बस. और किसी रोम्बस के डायगोनल्स या कहते हैं रोम्बस का हर एक एंगल 90 का हो जाए तो इट विल बी ए स्क्वायर. ठीक हो गया. किसी पैरेललोग्राम का हर एक एंगल 90 का हो जाए तो इट विल बी ए रेक्टेंगल. क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 8.1. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1. in this question the ratio of the angles, and angle A is to angle B is to angle C is to angle D is equal to 3:5:9:13, and saying that find the angles. Clear? So let angle A how much, 3x, and angle B 5x, angle C is 9x and angle D is 13x. मीन्स क्या किया हमने, एंगल ए को सपोज किया, इससे कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया एंड दैट नंबर इज x. 3 × x यानी फर्स्ट एंगल को कह दिया 3x, एंगल बी को कहा बेटा 5x, एंगल सी को 9x, एंगल डी को 13x. बाई
एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर quadrilateral. Clear? What angle sum property? In sum of all the angles, angle sum property for a quadrilateral is sum of all the angles is 360 degree. So this property will be we are applying. So angle A plus angle B plus angle C plus angle D will equal to 360 degree. And angle A is how much? Angle A is 3x plus angle B is 5x plus 9x and plus 13x equal to 360 degree. Is it clear? Sum of all these terms 3x and 5x, 8x, 8x and 9x, 17x, 17x and 13x कितना 30x equal to 360. So x equal to 360 upon 30. 3 1 ja 3 2 ja 6 means x equal to how much? 12. Yani the constant number by which we have multiply to all of these ratios is 12. So angle A is how much? 3 into x, yeah, 3 into 12, that is 36 degree. Okay. Angle B is 5x. So 5 into x यानी 5 into 12 कितना होगा 60 डिग्री. 12 5 the 60 डिग्री. And angle C is 9x. तो 9 into x, 9 into 12 कितना होगा 12 9 जा कितना होगा 12 9 जा 108. क्लियर. And angle D is 13x and 13 into x. तो 13 into 12 यानी 12 3 जा 36, 3 कैरी 12 बन जा 12 and 3 15 यानी क्या बने all four angles are 36, 60 degree, 108 and last is 156 degree. Is it clear? Okay. Yes. Question number 2. If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. Means the given part is यानी quadrilateral ABCD is a parallelogram. Clear? And diagonals क्या क्या होंगे? AC and BD both are equal. And this is a parallelogram which given to us. Clear? That is A, B, C and the D. Clear? To prove, what we have to prove? We have to prove कि quadrilateral ABCD is a rectangle. Is a rectangle. ठीक. अब वी हैव टू नो व्हाट इज रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल वो होता है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का हो. ठीक है नहीं. और अपोजिट साइड कैसी हो? इक्वल हो. तो यहाँ पर क्या है? अपोजिट साइड तो इक्वल है ही क्योंकि पैरेललोग्राम है. ए बी इक्वल टू सी डी है और बी सी इक्वल टू ए डी है. मीन एक काम यहाँ पे बना हुआ है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल. बट हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए बी सी एंड डी ऑल आर द 90 डिग्री. क्लियर. एंड ईच एंड एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. क्लियर. अगर हम किसी एक एंगल को भी 90 प्रूफ कर दें तो अगर एक एंगल ए 90 हो जाए तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इसके इक्वल होंगे. ऐसे ही ये इक्वल हो गया तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. मीन्स किसी एक एंगल के 90 होते ही ऑल एंगल्स विल बी 90 डिग्री. देखते हैं कैसे करेंगे हम इसका हर एक एंगल को 90 डिग्री. ठीक है. तो प्रूफ देखिए. क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram. Why? Because it is given. Clear? So एंगल A प्लस एंगल B यानी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो सम होगा विल बी 180 डिग्री. और इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट 1.
क्लियर। अब क्या करें, इसके जो डायगोनल्स हैं ये AC और डायगोनल BD, क्लियर। थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, ये दो ट्रायंगल हमने बाहर निकाले, वन इज DAB और अदर इज कौन सा, CBA, ठीक है। देखो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, तो इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल ABC आप देखोगे BD और AC बोथ आर इक्वल, यानी BD इक्वल टू AC, वाई, बिकॉज दीज आर गिवन, क्लियर। AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, वाई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्लियर। एंड AB क्या बेटा, AB है कॉमन, AB इन दिस ट्रायंगल एंड इन दिस ट्रायंगल। तो हियर देखो इस ट्रायंगल की ऑल द साइड, यानी ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल DAB आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, सो बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी, बाई SSS congruency we can say that कि ट्रायंगल BAD is congruent to ट्रायंगल किसके, ABC के, क्लियर, ABC के। अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो डियर बाई CPCTE आप देखेंगे द लार्जर B angle opposite to BD is this and angle opposite to AC is this, means angle BAD equal to होगा angle ABC, BAD means angle A equal to and ABC means angle B, इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट 2। इज इट क्लियर। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को आप देख, स्टेटमेंट 1 इज सेइंग दैट कि एंगल A प्लस B इज 180 डिग्री, वेयर एंगल A इक्वल टू एंगल B, सेइंग दैट स्टेटमेंट 2 इज सेइंग दिस। सो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ठीक है, तो क्या बनेगा, यहां पर एंगल B को रिप्लेस कर दे किससे, एंगल A से, यानी एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल A इक्वल टू 180 अपॉन 2 दैट इज 90। सो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में एंगल A को हमने क्या कहा, 90 प्रूफ कर दिया। जैसे ही एंगल A 90 होगा तो एंगल C ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा, और जैसे ही एंगल C ऑटोमेटिक 90 हुआ तो B यहाँ से एंगल A इक्वल टू B प्रूफ कर चुके हैं, तो B भी 90 हो गया। एंगल B 90 हुआ तो एंगल D अपने आप, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो बट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका कोई भी एंगल 90 का हो जाए इंटीरियर एंगल, वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। देन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। इज इट क्लियर, बोलिए। इस क्वेश्चन को आप मिनिमम 2 और 3 टाइम्स करेंगे, देखेंगे, तो ये ऑटोमेटिक आपकी समझ में आ जाएगा। ओके, सो डू इट एंड रिवाइज मिनिमम 2 और 3 टाइम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 is saying that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, means यहाँ पर क्या हो गया, bisect each other at right angle, then it is a rhombus। हमें प्रूव करना है कि it will be a rhombus, ठीक है। सो गिवन पार्ट इज हियर
what is given to us? Given to us is a quadrilateral ABCD in which जो डायगोनल है, मीन्स अभी इसको डायग्राम बना देते हैं लाइक दिस, ओके, A B C एंड दिस इज D, ठीक है। तो इसके जो डायगोनल्स हैं ये दिस वन और डायगोनल ये, both the diagonals are bisecting each other at point O and perpendicularly. क्या कहा इसने? बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, तो मीन्स पॉइंट O पर ये एंगल क्या है? 90 90 90 एंड 90, एंड इन विच AC perpendicular to BD, means AC and BD both are perpendicular, making right angle to each other, and OA equal to OC, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जितना पार्ट OA है उतना ही OC होगा, एंड OB equal to हाउ मच? OD, ठीक है। वी हैव टू प्रूव, मीन्स टू प्रूव कि ये जो रोम्बस है, अब देखो क्या है, इसके जो डायगोनल्स हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज की कमी रह जाती है, और वो कमी क्या है? अगर ऑल फोर साइड्स इक्वल हो जाएं, इन दिस सिचुएशन वी कैन से दैट कि इट विल बी ए रोम्बस। तो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इसकी चारों साइड्स को इक्वल फाइंड आउट करना है, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू ए डी, ये हमें प्रूफ करना है इसके अंदर। बाकी बाइसेक्ट तो कर ही रहा है वो, देखिए प्रूफ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AC परपेंडिकुलर टू BD और OA इक्वल टू OB, सॉरी OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, इतने पार्ट को हमने कह दिया कि ये स्टेटमेंट A है। क्या बोला इसको? स्टेटमेंट A, यानी इन दिस क्वाड्रिलेटरल द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल, तो इतने पार्ट को हमने क्या कहा? स्टेटमेंट ए कह दिया, ठीक हो गया। नाउ इन ट्रायंगल कौन कौन सा? OAB एंड OCB, देखिए इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCB, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, क्लियर। अब देखेंगे कि OA इक्वल टू किसके है बेटा? OC के है। OA एंड दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक हो गया। एंड एंगल AOB इक्वल है किसके? एंगल COB के, और इक्वल टू किसके बेटा? 90 के, और ये चीज क्या है? ये गिवन था, नहीं था। एंड OB इज कॉमन, OB कैसा बेटा? कॉमन है। तो आप देखोगे ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, और ये क्या हुआ? ये साइड, ये एंगल और ये साइड। तो हियर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ट्रायंगल, विच ट्रायंगल? OAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB, means this triangle and this triangle both are congruent, clear। congruent तो by CPCTE क्या कहेंगे? AB इक्वल टू किसके होगा बेटा? BC के, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1, ठीक हो गया। सिमिलरली जिस ढंग से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, कौन कौन से? OAB एंड OCB, सिमिलरली दीज टू ट्रायंगल कौन कौन से? यानी
ट्रायंगल OCB will congruent to triangle ODC, यानी ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए जा सकते हैं सेम SAS कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करके। तो यहाँ पर भी बाई CPCTE क्या होगा, BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू, और इसको हम कहेंगे 2। एंड सिमिलरली जिस ढंग से ये दोनों किए हैं ऐसे ही हम क्या करेंगे, ट्रायंगल OCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD, ठीक है, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो बाय CPCTE क्या होगा जी, CD इक्वल टू आ जाएगा किसके, DA के, और इसको आप कहोगे स्टेटमेंट थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या होगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD और इक्वल टू DA, इसको आप कहोगे स्टेटमेंट B। ठीक हो गया। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल फोर साइड्स आर इक्वल with diagonals perpendicularly bisect each other known as rhombus। तो here we can say that कि स्टेटमेंट A यानी फ्रॉम A एंड B क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए rhombus, इज ए rhombus। इज इट क्लियर? सो हियर वी कैन राइट हियर, यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए rhombus, ये हमें प्रूव करना था। और AB इक्वल टू ये सारी साइड इक्वल कर दी। इज इट क्लियर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा। मिनिमम 2 और 3 टाइम्स करके देखें, ठीक है। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 is saying that prove that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle। मीन्स हमें क्या क्या प्रूव करना, देखिए पहली बात तो हमें गिवन क्या क्या है। गिवन है डियर कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर। ओनली दिस गिवन मीन्स क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर, बस इतना हमें गिवन है। एंड टू प्रूव, क्या प्रूव करना डियर, ये एक स्क्वायर है डियर, कौन सा, ABC और ये D, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रूव करना है, एक तो हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट कि डायगोनल AC और डायगोनल BD बोथ आर इक्वल। ठीक हो गया। एंड तो पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमें जो प्रूव करना है कि अगर ये ओपन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो डियर OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। और थर्ड पार्ट हमें ये बताना है कि डियर AC परपेंडिकुलर टू BD। ये 3 पार्ट यहाँ पर बने। देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव, एंड गिवन पार्ट ओनली quadrilateral ABCD is a square, but we have to know what is square। यानी a square has all 4 sides are equal and each interior angle is of 90 degree। क्लियर? तो यहाँ पर अब हमें कंस्ट्रक्शन तो कुछ नहीं करनी, सीधा प्रूफ करेंगे। और जो प्रूफ है देखिए, इसके लिए हम क्या करें, ये छोटे छोटे 2 ट्रायंगल बाहर निकाल लेते हैं। वन इज दिस एंड वन इज दिस, लाइक दिस। ठीक हो गया। ये जो ट्रायंगल है ये है AB और ये D, एंड ये ट्रायंगल कौन था बेटा, A, ये B और ये C। ये एंगल 90 का है, इधर ये एंगल भी 90 का है। कोई कन्फ्यूजन? देखो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं। किस बात का डिस्कशन कर रहे हैं बेटा,
देखो AD इक्वल है, यानी ये साइड इक्वल है किसके, BC के। वाई, हम ये कह तो रहे हैं कि इक्वल हैं, बट क्यों हैं, क्योंकि साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि वी ऑल नो आर फैमिलियर विद द स्क्वायर कि स्क्वायर हैविंग ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और क्या है बेटा, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABC और इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। क्लियर, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। और जो साइड AB है वो क्या है बेटा, वो है कॉमन, तो ये हो गया साइड एंगल साइड, मीन्स हियर बाय SAS congruency we can say that कि ट्रायंगल कौन कौन से, ABD is congruent to triangle BAC। ठीक है, तो बाई CPCTE क्या करेगी यहाँ पर, देखिए इसमें 90 का अपोजिट कौन सा है, BD, और इस ट्रायंगल में 90 का अपोजिट AC, तो डायगोनल AC एंड डायगोनल BD बोथ आर इक्वल। क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, OA इक्वल टू OC, यानी OA इक्वल टू OC प्रूव करना है और OB इक्वल टू OD। तो नाउ इन ट्रायंगल कौन कौन सा, अदर पेन यूज करता हूँ, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD। देखिए अब दो ट्रायंगल में लिए OAB, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल इक्वल टू दिस एंगल। वाई, लॉजिक अभी लिखते हैं। देखिए एंगल OAB विल इक्वल टू एंगल OCD। वाई, देखो AB एंड CD बोथ आर पैरेलल एंड AC क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल, यानी लिख दें आगे ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर, ओके। एंड AB इक्वल टू किसके है डियर, CD के है। क्यों है ये, क्योंकि साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। ओके, एंड एंगल OBA इक्वल है किसके, एंगल ODC के, और ये भी कैसे है बेटा, ऑल्टरनेट एंगल है ये। ठीक है ना, तो ये ASA हम क्या कहेंगे, बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी। ठीक हो गया, तो साफ से लिख देता हूँ कॉन्ग्रुएंसी, तो क्या बनेगा, ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCD। तो बाई CPCTE, देखिए ये एंगल और ये एंगल बोथ आर इक्वल, तो अपोजिट टू दिस OD एंड अपोजिट टू दिस OB, तो कहेंगे बाई CPCTE क्या बनेगा बेटे, देखिए इसके अपोजिट OB और इस एंगल के इक्वल कौन सा है, C, इसका अपोजिट OD, तो OB इक्वल टू क्या बन गया बेटा, OD बन गया। एंड इस क्रॉस वाला जो एंगल बनाया मैंने, क्रॉस वाला, तो इसमें क्रॉस के अपोजिट कौन सा है, OA, और यहाँ क्रॉस के अपोजिट कौन सा है, OC, तो OA इक्वल टू OC, ये दोनों भी प्रूफ हो गए, यानी सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब कौन सा पार्ट बचता है, AC परपेंडिकुलर टू BD, जो हमें प्रूव करना है। ठीक है नहीं, तो नाउ ये भी प्रूफ हो गया हमारा। इन ट्रायंगल कौन कौन सा, OAB एंड ट्रायंगल OCB। ठीक, देखो OA इक्वल टू OB
ओ बी, जस्ट प्रूव। ठीक हो गया, यानी ये साइड और ये साइड, और ओ बी क्या है बेटा, कॉमन है। ठीक है, ओ बी कॉमन, और साइड ए बी इक्वल है साइड बी सी के। क्यों, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक, तो साइड 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 यानी बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी बी। क्लियर, यानी अभी हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हो गया, तो बाई सी पी सी टी ई, क्या कहती है सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी ए बी का अपोजिट ये एंगल और बी सी का अपोजिट ये एंगल, बोथ आर विल बी इक्वल, यानी एंगल ए ओ बी विल इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एंड इक्वल टू क्या कह दिया हमने, एक्स कह दिया, बट ए ओ सी इज स्ट्रेट लाइन। क्या बेटे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी विल इक्वल टू 180, और ए ओ सी कितना है, ए ओ सी को स्प्लिट करेंगे तो ए ओ बी और प्लस एंगल बी ओ सी विल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक हो गया, अब ए ओ बी कितना बेटा, एक्स है, और बी ओ सी कितना, एक्स, तो 180, ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो बेटा, 180, तो एक्स इक्वल टू क्या बन गया, 90 डिग्री, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो गया, 90, यानी ये एंगल 90 का हो गया। और जैसे ही ये एंगल 90 का होता है तो हम कह सकते हैं कि डियर ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, हो गया, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। क्लियर, यहाँ पर ये, तो अब हमारे तीनों पार्ट इसके प्रूव हो गए। क्या कहता था कि प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें स्क्वायर गिवन था, हमने स्टेप बाय स्टेप प्रूव किया। सबसे पहले क्या प्रूव किया था कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। आफ्टर दैट हमने प्रूव किया कि दोनों डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी प्रूव कि both the diagonals are perpendicularly bisect each other. Okay, so do it and practice minimum 2 or 3 times.